So, hello students. So, I am Dr. Manish Kumar, Dr. Manish Kumar Verma, uh, Department Head of Computer Science and IT here, and looking after all the IT infrastructure in CSMU, Chhatrapati Shivaji Maharaj University. So, today I'm just going to brief you about the ERP session, है ना? ERP, the how to use the ERP. ठीक है? So this is a short video of 10 to 15 minutes. So briefing you all about the ERP system of Chhatrapati Shivaji Maharaj University. ठीक है students. So all the students get the mail on their email, respective email ID with the username and password. ठीक है. Username is such that for example the username will be कुछ इस तरीके से होगा username कि like the name of the student is for example Shivam है ना @csmu.ac.in ठीक है ना all should be in small letters में होगा सब ये ठीक है csmu.ac.in so I should write in small letters है ना csmu.ac.in like that है ना and there is a password written below this ID है ना so what you have to do you have to use this to log in an ERP account on the university website ठीक है and the link meta campus करके एक link होगा that is visible there okay students so either you will just type that address in the browser and go to the page or there is another way another shortcut ठीक है ना अगर आप इतना टेंशन नहीं लेना चाहते हो कि ब्राउजर पे टाइप करना है फिर हमारी ईआरपी खुलेगी देन यू विल लॉग इन देन व्हाट यू हैव टू डू you just have to open our university website ठीक है ना then the university website is this one that was written in the address bar है ना ब्राउजर के एड्रेस बार पे लिखा है this is a browser तो क्या है csmu.ac.in ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप देखोगे एट द टॉप ERP login is mentioned here the cursor is on ERP login है ना जिसके आगे new blink कर रहा है with the red color new is blinking so what you will do you will just click on ERP login you will click on ERP login and you will direct it to this page ठीक है and this page looks similar to your Google account when you are going to log in your Google account है ना so there is lot of logins here my personal logins were there and what you will do you will just choose here use another account ठीक है ना तो use another account पे जब करोगे तो यहाँ पर जो आपको हमारी हमारी ईमेल में जो एड्रेस था जो मैं अभी बता रहा था @csmu.ac.in उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन करोगे ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ फॉर ब्रीफिंग यू अबाउट आई जस्ट लॉग इन विद माई अकाउंट ठीक है ना अकेडमिक का अकाउंट है मैं उससे लॉग इन कर रहा हूँ फिर आप वही वाला पासवर्ड यहाँ पे डालोगे जो भी होगा ठीक है स्टूडेंट्स और यू जस्ट नेक्स्ट लॉग इन ओ सॉरी CS जो भी पासवर्ड होगा मेरा दैट आई विल ठीक है देन दिस विल रीडायरेक्ट टू योर ERP लॉगिन है ना मेटा कैंपस देखा ऊपर डेस्क ऊपर देखोगे ना ऊपर metacampus.csmu.ac.in आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस लिंक ये वही लिंक था जो मेंशन होगा जो डायरेक्टली आप डालोगे ठीक है एंड सेकंड अल्टरनेट विच आई हैव टोल्ड यू कि गो टू छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी ठीक है यहाँ पे ERP लॉगिन पे क्लिक करोगे एंड यू विल रीडायरेक्टेड टू हियर ठीक है बाय एंटरिंग योर डिटेल्स ठीक है सो दिस इज द डैशबोर्ड ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जो आप स्टूडेंट के लॉगिन से आप करोगे वो लॉगिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ठीक है सो आई विल बी इन द स्टूडेंट मोड नाउ तो आई जस्ट टाइप द नेम ऑफ द शिवम फॉर जस्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ठीक है ना शिवम कुमार सिंह है एक स्टूडेंट ठीक है नाउ ये लॉगिन हो जाएगा तो दिस पेज विल बी ओपनड हियर तो ये पेज आप सबको दिखाई देगा ऑन योर स्क्रीन ठीक है ऑन योर लैपटॉप स्क्रीन ऑन योर डेस्कटॉप स्क्रीन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन आल्सो ठीक है स्टूडेंट्स देखो वेलकम शिवम लिखा हुआ है यहाँ पर व्हाट यू नीड टू चेक इज योर नेम इज करेक्ट हियर ठीक है सेशन विल बी डिस्प्लेड राइट कॉर्नर पे 220 या 21
and odd semester will be displayed because first semester comes under odd semester. So this is your dashboard. Student dashboard will be visible here. ठीक है? You can access each and every link displayed on this dashboard. If there is an announcement, if there is any announcement from our side, then it is mentioned here like this. ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अनाउंसमेंट का एक सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है. 1 मीन्स दैट देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर यू. तो व्हाट यू हैव टू डू, दिस अनाउंसमेंट, देखो ये ये जो अनाउंसमेंट थी ये 12 अक्टूबर को डिस्प्ले हुई थी, डाली गई थी. किसने डाली थी? एडमिन ने डाली थी. ठीक है ना? ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यू स्टूडेंट्स के नाम से. तो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट प्रेस हियर शो डिटेल्स. ठीक है, दिस विल कम. इफ देयर इज एनी अटैचमेंट, you have to click on that attachment. ठीक है? डिटेल में क्या है? ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम फॉर न्यू स्टूडेंट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 2 नवंबर. तो आई हैव जस्ट क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन पेज. नोटिस जो है उसको डाउनलोड हो गया नोटिस, और जो नोटिस था दैट विल बी डिस्प्लेड. दिस इज द नोटिस. ठीक है? फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम. ठीक है गाइस? तो दिस ऑल यू कैन चेक. आई जस्ट कम आउट. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट first of all what you have to do, you have to check your profile. अब प्रोफाइल कैसे चेक होगी? राइट हैंड कॉर्नर पे आपका नाम जहां पे आ रहा होगा, वेलकम शिवम जो लिखा हुआ है, आई विल क्लिक हियर. ठीक है? और वहां पर एक मेन्यू खुलेगा. अ मेन्यू विल बी ओपन एंड यू हैव टू क्लिक ऑन माय प्रोफाइल. ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक. है ना? कलर चेंज हो गया ना उसका. आई विल क्लिक हियर. प्रोफाइल विल बी डिस्प्लेड. तो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक योर प्रोफाइल. दैट, है ना, जब आपने एडमिशन लिया था, व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड टू अस, क्या इट हैज बीन अपडेटेड करेक्टली हियर? योर 10th 12th डिटेल्स या पोस्ट ग्रेजुएशन प्री ग्रेजुएशन डिटेल, वॉट एवर द डिटेल्स आर देयर. ठीक है? दिस इज योर यूजर आईडी. दैट यूजर आईडी दैट वी हैव सेंड टू यू, विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव लॉग इन देयर. ठीक है? और यहाँ पर प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये अभी ब्लैंक आ रहे होंगे. क्यों आ रहे होंगे ब्लैंक? Because registration work is going on the ERP. So when the subjects were assigned to you for the particular semester, for the particular course, then they will be displayed here. ठीक है? पेपर ग्रुप 1, पेपर ग्रुप 2, पेपर ग्रुप 3 like that. तो प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ? BCA. It means this शिवम संदीप कुमार सिंह is a BCA student. ठीक है ना? तो for example, for giving you example, I just assign this student into a course. ठीक है? तो ऐसे ही प्रोग्राम आपको चेक करना है. और व्हाट यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर एड्रेस, योर सिटी, योर कंट्री, योर पिन कोड, योर डिटेल्स, परसेंटेज, मार्क्स, पासिंग ईयर, योर ईमेल आईडी दैट यू हैव इनिशियली प्रोवाइडेड टू अस. ऑल यू हैव टू चेक हियर. ठीक है ना? पेरेंट नेम इज देयर, मेंटर गार्जियन दैट विल बी सिलेक्टेड बाय अस. तो अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी जस्ट पुट इट डेमो टीचर हियर. ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये आपको चेक करना. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. ओके गाइस? नाउ तो आई जस्ट एलिब्रेट वन बाय वन. तो अगेन आई केम टू डैशबोर्ड. ठीक है? अब इस डैशबोर्ड पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी. इवेंट्स, असाइनमेंट, ई रिसोर्सेज. तो जैसे जैसे सेशन चलेगा, प्रोग्रेस होगा, तो दीज ऑल विल बी अपडेटेड. ठीक है? तो जो टीचर असाइनमेंट डालेगा, जो भी इवेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी में, दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू. ठीक है स्टूडेंट्स? एंड वन टाइम टेबल सेक्शन इज आल्सो देयर. तो टाइम टेबल कब असाइन होगा? जब आपको सब्जेक्ट असाइन होंगे और उन सब्जेक्ट्स को रिस्पेक्टिव टीचर असाइन होंगे, तो फिर हम टाइम टेबल बनेगा और टाइम टेबल में वो स्लॉट्स आपके आ जाएंगे. ठीक है? अभी एक्चुअली में क्या है, फॉर एग्जांपल, टू शो यू एग्जांपल, वन पेपर इज एडेड हियर, CSAB. ये BCA का पेपर है. तो ये एक पेपर मैंने असाइन करके देखा था. तो इस तरीके से सारे पेपर लाइन बाय लाइन, कॉलम वाइज कॉलम नीचे आने लगेंगे. दैट विल बी डिस्प्लेड टू यू. ओके स्टूडेंट्स? तो अभी ये कॉलम खाली आएगा. तो यू कैन वॉच हियर ऑल द अटेंडेंस एंड टाइम टेबल. टाइम टेबल विल बी मेंशन, अटेंडेंस यू कैन सी हियर. Okay, your attendance, weekly attendance, monthly attendance, all you can check out here. ठीक है? Next is comes the academic session. Academic session में you can check the assessment record. Assessment record मतलब जो टीचर्स आपको असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट्स पे वो मार्क करेंगे. अगर वो असाइनमेंट ठीक नहीं है तो वो आपको वापस भेज देंगे. तो all the records will be defined here, assessment record. ठीक है बच्चों? Your respective class will be there. जैसे मैंने अभी आई जस्ट टोल्ड यू दैट टू शो यू एग्जांपल, आई हैव असाइंड अ क्लास ऑफ C प्रोग्रामिंग टू दिस स्टूडेंट हुज पेपर कोड इज CSAB 1010.
ठीक है ना। इफ दैट स्टूडेंट इज एनी ग्रुप देन ग्रुप 1 ग्रुप 2 विल बी डिस्प्लेड। कोई ग्रुप नहीं है तो नॉट टू वरी। ठीक है, द सिलेबस का वो जो सिलेबस है उसका सिलेबस मेंशन होगा उस पेपर का, सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर एक ड्यू पेपर का ऑप्शन है यहाँ पर। वो ड्यू पेपर जो है वो अगर आप यू विल फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर, है ना। अगर आपका कोई कैरी पेपर होता है, कोई ड्यू पेपर रह जाता है तो वो यहाँ पर मेंशन होगा, अभी इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल एकेडमिक। नेक्स्ट ऑप्शन इज कम्युनिकेशन। आई क्लिक ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एक मेन्यू में मैसेज आ रहा है, बस आई क्लिक ऑन द मैसेज हेयर। ठीक है ना। मैसेज में क्या होगा, अगर आप अपने कोऑर्डिनेटर के साथ या किसी टीचर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली गो हेयर। अब एक्चुअली में क्या होता है कि हम स्टूडेंट जो लोग हैं ना, स्टूडेंट्स, वो टीचर से सामने आमने सामने फेस टू फेस वो बात नहीं कर पाते हैं। तो इफ दे वांट टू मैसेज देम पर्सनली to their mentor, to the class teacher, any other department teacher also, then you can go to here and create a message, create new message। देखा मैंने इस पे प्लस पे साइन पे क्लिक करा तो यहाँ पे जिसको भी करना है टू, ठीक है, जैसे यहाँ पे डमी टीचर आ रहा है आपका, जो वो क्या बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेटर इज देयर, तो यहाँ पे डमी टीचर है, उसको सिलेक्ट करोगे। रिगार्डिंग सब्जेक्ट यू विल पुट हेयर, और कंटेंट कि सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस सब्जेक्ट, या आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या someone is disturbing me, like that you can show here। ठीक है, S means student, P for parents, T for teacher, G for in a group। जहां भी आप डालना चाहते हो तो T is a your guardian, है ना, डमी टीचर यहाँ पे हमने बनाया हुआ जो कोऑर्डिनेटर होगा। तो ये एक कॉलम हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है टू हैव अ कम्युनिकेशन विद योर कोऑर्डिनेटर और एनी टीचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन का। नाउ नेक्स्ट इज अटेंडेंस। अटेंडेंस का आपके डैशबोर्ड पे विजिबल हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की विजिबल हो जाएगी। जैसे आई हैव एडेड अ सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग, तो रिगार्डिंग दैट ऑल द अटेंडेंस विल बी विजिबल। ठीक है, अब एक और हमने यहाँ पर अटेंडेंस में एक और कॉलम बनाया हुआ है, एक और मेन्यू के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज ड्यूटी लीव। आई क्लिक ऑन ड्यूटी लीव, तो यहाँ पर क्या होता है ड्यूटी लीव में, फॉर एग्जाम्पल सम कल्चरल एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन द कैंपस। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास में तो है नहीं, बट वो यूनिवर्सिटी में है और ही और शी इज इन्वॉल्विंग इन सम वर्क। ठीक है, तो अब वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तो आया है, बट इट इज ही और शी इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पे वो ड्यूटी लीव डाल सकता है। तो वी कैन कोऑर्डिनेटर या पर्टिकुलर टीचर कैन सी दैट दैट स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द कैंपस बट नॉट, तो हम यहाँ पर उसको ड्यूटी लीव असाइन कर सकते हैं सो दैट उसकी अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या होगा, जब आपके टीचर पढ़ाएगा, जब आपका टीचर पढ़ाएगा जब आपका टीचर पढ़ाएगा ना, तो वो कुछ असाइनमेंट्स आपको देगा, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, तो दैट विल बी विजिबल टू यू अंडर दिस सेक्शन असाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पर विजिबल होगा। अभी कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया है किसी टीचर के, क्योंकि अभी टाइम टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, उसके बाद टीचर असाइन होंगे, तो वो ऑल द असाइनमेंट्स विल बी गिवन हियर। ठीक है, और जो आप सबमिट करोगे वो भी आपको विजिबल होगा। टीचर जो असाइनमेंट चेक करके वापस भेजेगा, या कुछ क्वेरी होगी, या कुछ देयर इज सम मिस्टेक देयर, तो ऑल द थिंग्स विल बी विजिबल हियर। ठीक है, ई रिसोर्स में जो भी मटेरियल टीचर प्रोवाइड कराएगा दैट इज अवेलेबल है, एनी वीडियो लेक्चर, एनी पीडीएफ नोट्स, एनी टाइप ऑफ नोट्स। ओके गाइस, तो दिस इज द रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड पेपर्स। तो रजिस्टर्ड पेपर्स में देखो, ये ऑटोमेटिकली इस स्टूडेंट के जितने भी पेपर हैं, वो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जितने पेपर पढ़ेगा, ऑल द पेपर्स विल बी विजिबल हियर। तो रिस्पेक्टिवली सभी स्टूडेंट्स के लॉगिन में ये रजिस्टर्ड पेपर्स विजिबल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ शिवम। ये स्टूडेंट बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, प्रोग्राम नेम इज बीसीए या बीसीए भी। ठीक है, तो सिलेक्टेड पेपर्स विल बी शोन हियर, ऑल द लैब्स एंड थ्योरी पेपर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कम्स द स्टूडेंट री एडमिशन। स्टूडेंट री एडमिशन क्या है, दिस पार्ट इज नॉट फॉर योर, व्हेन यू आर गो टू नेक्स्ट सेमेस्टर। जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो आपको देन यू हैव टू यूज दिस स्टूडेंट री एडमिशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, अभी तो ये हमारी तरफ से एडमिन की तरफ से दिया हुआ है, कांग्रेचुलेशन योर री एडमिशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। तो इट विल डिपेंड की ऑन योर फी रिपेमेंट दिस प्रोसेस विल फर्दर स्टार्ट। ठीक है, तो ये कब यूज होगा, जब आप यू विल प्रमोटेड टू सेकंड सेमेस्टर इन रिस्पेक्टिव नेक्स्ट सेमेस्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फी पेमेंट। तो फी पेमेंट में आप जितनी भी प्रीवियस ट्रांजेक्शन है वो आप देख सकते हो। जैसे इस स्टूडेंट ने
10,000 अमाउंट ट्रांसफर किया था विद द हेल्प ऑफ बैंक ट्रांसफर। तो इफ ही वांट टू सी, तो ये जहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, ऑप्शन में मैंने गया तो यहाँ पे व्यू स्क्रिप्ट आ गया। तो अगर वो स्क्रिप्ट देखना चाहता है अपनी, तो यहाँ पर क्लिक करेगा तो दैट स्क्रिप्ट विल बी विजिबल, फी रिसिप्ट विल बी विजिबल हेयर। ओके, लाइक दिस यू ऑल कैन चेक हेयर। ठीक है, उसके बाद वी आर एडिंग फॉर मोर ऑप्शंस इन फॉर द एग्जामिनेशन टाइम। यू कैन जस्ट डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम हेयर, you can fill the examination form from here. So when the exams will come, then this form will be displayed. ठीक है, this you can check later on. ठीक है, some मतलब if you want, if some girls student want या some boys student want to report grievance cell होता है हर यूनिवर्सिटी में, उसको रिपोर्ट करना चाहता है कंप्लेन, तो वो भी दे सकता है अंडर दिस सेशन। ठीक है, अभी इसको हमने एक्टिव नहीं करा है, दिस विल बी एक्टिव सून। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रीफिंग सेक्शन। अगर कोई क्वेरी आती है देन राइट इट द क्वेरी, राइट लिख लेना एंड कॉन्टेक्ट द आईटी टीम एट यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, माय नंबर इज डिस्प्लेड देयर, जो भी मेल आई थी आपकी, अगर कुछ होता है देन यू कैन पर्सनली पिंग टू मी। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर दिस ब्रीफिंग सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई जस्ट close the meeting here. Okay.